Yes, this video is for chapter 1.1. Chapter 1, the name of the chapter is real number. The exercise 1.1 is based on equivalent division lemma and that are in our deleted syllabus. So you are not taking your exercise 1.1 and no need to be revise it. Your syllabus actually start from exercise 1.2 and this is fundamental theorem on arithmetic. This is fundamental theorem of arithmetic. Arithmetics में the definition is every composite number means which has factor more than 1 and itself, means the number which are not prime number are called composite number. Example of composite number is 4. The least composite number is 4. The least composite number is 4 because 1 is neither composite nor prime. 2 is even prime number. 3 is prime number. 4 is the least composite number. Every composite number can be expressed as product of prime. As product of primes. Example you may take that, let me take example is 140. The first factor is 2 into 70, then 2 into 2 into 35, then 2 into 2 into 5 into 7. So this is 2 raised to power 2 into 5 into 7. This is called prime factorizations. This is called prime factorizations. Is this point clear? Because 140 you have reduced into product of prime. These are multiplied and product of primes. And this decomposition is unique. Discomposition जो breaking मैंने आपको 140 की करके दिखाई है, that is unique apart from the other in which prime factors occur. Apart from the orders mean a students may write 7 into 5 into 2 raised to power 2. Order means a students may write in this way or may write in this way, mean may be written in any order, but factorization is unique. So this is your actually definitions, fundamental theorem on arithmetics. In this case you have first questions, express exercise 1.2, express each number as a product of prime factors. Means ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया फर्स्ट का. लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 5. रेस्ट ऑफ द टाइप यू कैन डू योर ऑन. 7429. स्टूडेंट्स को बड़ी बड़ी फैक्टराइजेशन एक्स्ट्रा बुक से ट्राई कर लेनी चाहिए. If you add them, this is 11 plus 11 22. This will neither its factor will be 3
nor its factor will be 9. So you may rule out the possibilities of 3 and 9. Neither last two digits are divisible by 4. Not last three digits are divisible by 8. Is it clear? It means you have to select a bigger prime numbers to handle these questions. 11 not divisible. 13. So you may take first number is 17. 17 4 ja 68. 6. 62. 7 3 ja 51. 7 7 ja 119. Then 17 into, this is 19 into 38, 57 3. So this is the prime factorizations of 7429. तो आई हैव टेकन द केस इन सच ए वे कि जब ये एक बड़े प्राइम नंबर से ही डिवाइड हो रहे हैं, तो जितने बड़े बड़े सम्स आप एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फैक्टराइजेशंस, टेबल्स, मल्टीप्लिकेशंस ही हेल्प करेंगे. तो यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑन अर्थमेटिक. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ primes, and this decomposition is unique apart from the order in which the prime factor occur. तो इसमें 3 स्टेप्स में याद कर सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, नंबर 1. नंबर 2, decomposition is unique. Number 3, apart from the order in which the prime factor occur. You may go with these 3 steps to learn these definitions. Okay, now I am coming to the next points. Next point is HCF. HCF को हम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल. हम इनको किसी भी नाम से कॉल कर लेते हैं, HCF और GCD और GCM, one and the same. Now what is HCF? HCF of 2 or more number is the greatest number that divide each one of them exactly. Each one of them exactly. For example, now I am taking question number 2. Find the HCF of 336 and 54. 336 के मैं फैक्टर्स ले लेता हूं. 12 मीन 3 से डिवाइड होगा, 1 1 2, 4 से डिवाइड होगा, 4 2 जा 8, 28, 3 into 4 into 4 into 7. तो फाइंड फैक्टराइजेशन 2 into 2 raised to power 4 into 7. This is prime factorizations because 2, 3 and 7s are prime numbers. 54, 3 cube into 2, 27 into 2. Now what is the HCF? I have written product of the least power of common factors. HCF का मैंने मेथड लिखा प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर
लीस्ट मीन छोटी पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब पहले तो आप इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढ लीजिए। एक कॉमन फैक्टर तो ये 2 है, एंड व्हाट इज द लीस्ट पावर? ओनली 2। दूसरा कॉमन फैक्टर 3 है, इसकी 3 की पावर 3 है, इसकी 3 की पावर 1 है, तो लीस्ट पावर इज 3, तो HCF इज 6। द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स मीन, ये थ्योरी आपको अगर जो लर्न रहेंगी तो आप बड़ी क्लासेस तक में भी कोई मार नहीं खाएंगे। नाउ ऊपर वाली डेफिनेशन देखिए, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर 6 आ गया, दैट डिवाइड 6 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी करेगा। दिस इज द डेफिनेशंस। इससे बड़ा नंबर इन दो नंबरों में नहीं निकलेगा। तो प्रोसीजर क्या बना HCF लेने का कि पहले कोई भी नंबर्स होंगे आप उनकी प्राइम फैक्टराइजेशंस करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर लेंगे। नेक्स्ट कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, LCM। द LCM of 2 or more number is the least number which is exactly divisible by each of the given number। एक ऐसा नंबर आएगा LCM, जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं वो सब LCM को आसानी से डिवाइड कर लेंगे। मीन्स यहां से अगर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM लेता हूं, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर, वहां कॉमन फैक्टर थे, ऑल का मतलब पहले 3 देख लो, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3 है। 2 देख लो, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 है। फिर 7 क्योंकि सारे फैक्टर लेने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 27 इंटू 16 इंटू 7 9। पहले मैं 27 को 7 से कर रहा हूं, इंटू 16, 16 9 जा 144, 14, 16 8 जा 128 प्लस 14 142 एंड 30। तो दिस इज द LCM ऑफ दिस क्वेश्चंस। The examples what I have taken, I have taken second example and third part. तो I have explained each and every definitions कि LCM is the product of highest power of all factors. Collect the highest powers and complete the remaining part of the questions. Now useful results. In this useful results, I am coming to the next points. The product of two numbers is their HCF into their LCMs. This result is only true for two numbers. ये भी बात ध्यान में रख लेना, दो नंबर के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। इट डजेंट मीन कि आप सबके लिए अप्लाई करते रहें। फॉर एग्जाम्पल हम यहीं से वेरीफाई कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं 336 इंटू 54। व्हाट इज दिस? इसको आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 18144 आएगा, एंड HCF इंटू LCM क्या आएगा? 3024 इंटू 6 सेम आएगा, हैंस वेरीफाइड।
तो एक्सरसाइज के मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको करा दिए। आई हैव टेकन 1 पार्ट्स, आई हैव नॉट टेकन ऑल द पार्ट्स। नाउ लेट अस कमिंग ऑन 3 numbers। What actually is 3 number? देखिए मैंने आपको 3 नंबरों का HCF लेने का तरीका बता दिया। HCF of A, B and C will be product of 3 numbers and into LCM of A, B, C divided by LCM of AB, LCM of BC and LCM of AC। ये HCF of ABC का मेथड हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और ये सब कुछ करेंगे तो LCM ऑफ 3 नंबर्स लेने का जो रिजल्ट वेरीफाइड का तरीका होगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, HCF ऑफ ABC, HCF ऑफ AB, HCF ऑफ BC एंड HCF ऑफ AC। कहने का मतलब HCF में LCM लेने पड़ेंगे और LCM में आपको HCF लेने पड़ेंगे। ये मैंने 3 नंबरों की बात की है, लेकिन आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा काम है वो 2 नंबरों का तो दे रखा है, बट ये पता होना चाहिए कि 3 नंबरों में वैलिड नहीं है। लाइक आई कैन गिव एन आइडिया। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एनसीईआरटी में थोड़े छोटे क्वेश्चंस हैं, आप बड़े भी ट्राई कर सकते हैं, बट हेयर आई एम टेकिंग ओनली द कॉन्सेप्ट्स। दिस इज 2 raised to power 2 into 3, this is 3 into 5, this is 3 into 7। if I take HCF, आप कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर 3 है तो एक ही फैक्टर HCF आएगा। LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मीन्स 12, 60, 420 is the LCM। अब आप जो वेरीफाई करेंगे वो कैसे, मान लेते हैं मैं HCF ऑफ ABC वेरीफाई करा देता हूं। HCF ऑफ 12, 15 एंड 21, मैं इन तीनों की प्रोडक्ट करता हूं इनटू LCM ऑफ ABC इज 420 divided by LCM of A and B। देख लो, लिख लेते हैं LCM of 12 and 15। और क्या डेफिनेशन याद होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 विच इज 60। नाउ LCM ऑफ 15 and 21, 3 into 5 into 7 which is 105। LCM of 12 and 21, this is 4 into 3 into 7 which is 84। 420, 84, this is 10, this is 2,
0 cancelled, 6 2 जा 12 cancel, 15 7 जा 105, 7 3 जा 21 3. Answer is proved. HCF is 3. वैसे भी NTSC और वगैरह क्लासेस के लिए भी ये फार्मूलेज आपको आने चाहिए. साथ में इतना तो पता होना चाहिए कि वो रिजल्ट्स ओनली 2 नंबर के लिए ट्रू है. ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि HCF में सारे इधर LCMs हैं और LCM में सारे उधर HCF हैं. तो थर्ड क्वेश्चंस भी आप अपने आप कंप्लीट कर लेंगे. LCMs को स्टूडेंट्स खुद वेरीफाई करेंगे कि अगर आप इसमें LCMs को वेरीफाई करना चाहते हैं, आई कैन गिव एन आइडिया कि अब आपको यहाँ पे HCF निकालने पड़ेंगे. LCM ऑफ ABC will be equal to A into B into C into HCF ऑफ AB. C 3 है. अब HCF ले लें इन दोनों का, कॉमन फैक्टर तो 3 है. 15 और 21 का भी कॉमन फैक्टर 3 है और 12 और 21 का भी कॉमन फैक्टर 3 है. 3 कैंसल्ड, 7 5. तो 60 इंटू 7, आंसर इज 420. ये मैंने इस मेथड को अप्लाई कर दिया. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में दिया हुआ है. गिवन दैट द HCF इज 9 और LCM आपने निकालना है, तो आप ये रिजल्ट्स लगा सकते हैं. मीन्स कौन से रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूं. आप इस रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज देयर HCF इंटू LCMs. मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 9 इंटू LCM. तो therefore LCM is, I am taking, this is your question number 4. So this will be 306 in by 657 upon 9. Cancelled, 9 7 is 63, 27, and when you multiply it by 306 into this will be, answer will be 22, 33 and 8. So this is your question number 4. Now let me take question number 5. Check whether 6 raised to power n can end with digits 0 for any natural number. देखिए 6 रेज टू पावर n के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो दिस इज 2 इंटू 3 रेज टू पावर n, दैट इज 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n. दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशंस. दिस शो दैट कि 6 रेज टू पावर n कंटेन्स ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 2 and 3. Since there is no factor, no 5 as a factor in 6 raised to power n, so this implies there is no natural number
देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 6 raised to power n एंड विद 0, क्योंकि 0 का n होने के लिए फैक्टर 2 और 5 होने जरूरी हैं। 2 तो आपको पास है लेकिन 5 नहीं है। और प्राइम फैक्टराइजेशंस ये कहती हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑन अर्थमेटिक ये कहते हैं, इसका मतलब ये यूनिक होने के कारण कभी भी ये फैक्टर नहीं होगा। तो मैंने लिखा 6 raised to power n contain only 2 factor, that is 2 and 3, hence there is no factor, no number, there is no 5 as factor in 6 raised to power n, there is no 5 as factor in 6 raised to power n. So this is your question number 5. एंड क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। बड़ा सिंपल है। देखिए फर्स्ट आपको दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए आप यहाँ 13 कॉमन ले लो तो 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78 आ गया। तो 13 इंटू फिर इसके बना लेंगे फैक्टर्स 2 इंटू 39, तो 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 आ गए। ये पूरी फैक्टराइजेशन आ गई। तो ये फैक्टराइजेशन क्या करती है? द प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2, 3 एंड 13, हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर, हैंस इट इज ए, क्योंकि जो नंबर प्राइम नहीं है वही कंपोजिट नंबर्स हैं। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ। यहाँ पे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, 2 भी है, 3 भी है और 13 भी है। सेम सेकंड पार्ट है, एंड का मतलब इसका सेकंड पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से भी आप 5 कॉमन ले सकते हैं ताकि एक फैक्टर इजी रहे। 12 इंटू 12 144 इंटू 7 प्लस 1 2 तो 5 इंटू 1009 1099 मीन्स 2 फैक्टर्स आ गए हैं, एक 5 और एक 1009, हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। Question number 7. There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field and Ravi takes 12 minutes. Suppose they both start the same point at the same time and go in the same direction. तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सेम प्लेस, सेम टाइम्स एंड इन सेम डायरेक्शंस। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो आपको सबसे पहले तो इसमें कंसेप्ट ढूंढना चाहिए। द कंसेप्ट इज they will meet either the multiple of 18 or multiple of 12। तो फर्स्ट टाइम जब भी वो मिलेंगे तो हम इसमें कॉन्सेप्ट एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स लगाएंगे। बट वी विल अप्लाई द एलसीएम्स ऑफ 2 नंबर्स। मतलब आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ऐसे ट्रेन से भी आ सकते हैं, एक ट्रेन 2 स्टेशन पर रुकती है, एक 3 के ऊपर रुकती है, तो हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे कि वो किस किस टाइम पे आपस में सेम स्टेशंस पे रुकेंगी। तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत सारा इजी है, अदरवाइज सब मुश्किल नहीं है। तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। मीन्स आप सोच सकते हैं 12 का मतलब क्या आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 का मतलब क्या होगा,
3 की पावर 2 इंटू 2। तो एलसीएम का मतलब मैंने क्या बता रखा, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो मीन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 मीन्स 4 इंटू 9 इज 36। इट मीन्स Sonia and Ravi will meet again at the starting points after 36 minutes। ठीक है, they meet at the starting point after 36 minutes और हर 36 मिनट के बाद मिलते रहेंगे। Clear? I have written one more concepts कि HCF of a fraction means HCF of numerator and LCM of denominator, and LCM of fraction is LCM of numerator and HCF of denominators। मतलब जो निकालना है एलसीएम या एचसीएफ वो न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में उसका ऑपोजिट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन एग्जाम्पल्स। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन पहले हम निकाल लेते हैं। तो हम एचसीएफ किसका निकालने वाले हैं, 8/9, 32/81 एंड 10/27। तो हम इसमें सबसे पहले HCF ऑफ न्यूमरेटर का मतलब 8, 32 एंड 10 निकालेंगे। 8 के फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 की पावर 3, 32, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 10, 2 इंटू 5। तो HCF ऑफ दिस इज 2। देखिए मैंने क्या लिखा है एचसीएम, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम ऑफ 8, 32 एंड 10 इज हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, मीन्स 32 इंटू 5 इज 160। Now HCF of fraction is 2/160। बिकॉज HCF न्यूमरेटर का लेना और LCM आपने डिनोमिनेटर का। तो यहाँ LCMs हमारा प्रॉब्लम्स में है। कैसे? LCM मुझे लेना 9, 81 और 27 का। तो 9 का मतलब तो 9 ही रख लेते हैं, 3 की पावर 2 रख लेते हैं। 81 का मतलब 3 की पावर 4 और 27 का मतलब 3 की पावर 3। तो LCM इज 3 की पावर 4। आंसर इज 2/81। ओके, अब हम लेते हैं LCM ऑफ 8/9, 32/81 एंड 10/27। फार्मूला मैं लगाऊंगा LCM ऑफ 8, 32 एंड 10 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 9, 81 एंड 27। Now LCM is 160 बिकॉज मैंने यहां निकाला था कि 2⁵ into 5 and here HCF is 3⁵2। Product of the least power of common factors, that is 9। तो दिस इज योर आंसर्स। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना पॉइंट भी कवर करना चाहिए।
कि बेसिकली दिस इज योर एक्सरसाइज 1.2 एंड आई हैव कवर ऑल द क्वेश्चंस। एग्जाम्पल्स आप खुद देखेंगे। इस तरीके से आप इनके कॉन्सेप्ट्स को बिल्टअप कर लीजिए। तो दिस you may take revisions for your exercise 1.2.